Okay, I hope I'm audible and we are beginning. So, first of all, good evening, good afternoon, and welcome to this session on emotional intelligence and its relevance in the virtual world. Now, if you look at the topic carefully, you'll see that it has some distinct parts. So, can you just take a guess right now that what all are we gonna discuss in today's session? What are we going to talk about in today's session? Can So you can see I? the slides? Are the slides visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So tell me, what do you think we're going to talk about today? So can I answer? Yeah, yeah, please go ahead. And please mention your name while you are answering so that we get to know each other. Yeah. So my name is Mrinalini Gupta, and emotional intelligence in the virtual world basically means that not hurting anyone or not saying something offensive to anyone in means Okay. of your speech or your posts or your comments or anything like that to anyone or to any particular segment of the society or any particular section in the society like that. Okay. I take that. Anything else? Anybody else who would like to share? No worries. We'll see as we go ahead. But more importantly, please unmute your mic for a minute. I want to congratulate you. It has been a very hard time. It has been a very difficult time, different time, and you all are here. You have made it. So I want to give you a round of applause. Give yourself a round of applause. Unmute your mics and let us hear it. Let us hear it. You have made it. You are here. It's a commendable job. Wonderful. Okay. Now that Thank you, we are sir. yes. Okay. Now पहले लेक्चर में एक बड़ा यूनिक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक बहुत यूनिक चांस मिलता है. You all want to know who the instructor is. So I'm gonna use this time and I'm gonna tell you a little about myself. The thing that I'm most involved right now is writing. I'm an author, and during this lockdown, the latest book that I've published is called Alphabets of a Better Life. And keeping in mind the current situation and the current readership, this book is pretty concise. I have summarized it in just 64 pages, and these are 64 pages to happiness and finding meaning in life. So, Sir, this is one of the activities that I'm involved in. Yeah. excuse me, sir. So there are students waiting in the lobby, sir. So can you make one of the volunteer as a uh, presenter, and they'll add the students. So because many students are texting me that they are waiting in the queue in the Yes, lobby. sir. Because there are some students who are not able to join it. I think I've made representatives, Uh, and I don't Sir, see anybody waiting in the the students who are lobby waiting right in the now. lobby, I'm accepting that. There is no one left in the lobby right now. Yeah, Okay, sir. there's one left there. Okay, so let's continue. So this is one of the activities I'm involved in. Besides, I'm a speaker and trainer. Be it competitive exams or be it corporate world, I train people. I train people for interviews, GDs. Maybe we will get to interact a little in these issues. But something that I recognize myself most as, I like to believe that I act as an igniter. I like to foster creativity. I in counsel people who are willing to start a new venture or are already in a startup. And this is the job that I like the most, creating new energy. That I've worked with Indian Army, I've worked with Google India, and besides other things, I am also focusing on mental health and wellness. This issue came up especially during the lockdown, and currently I'm dedicating a lot of my time and energy on this field, mental health and wellness.
So that is about me. Some of you will get to know more about me as we go ahead with the classes. I'll be taking a section of you, and I think we'll be talking about careers and life skill. Anyway, tell me something. What do you determines Excuse me, sir. success? Excuse me, sir. I'm really sorry to interrupt you, but your voice is not clear. Is it clear now? Sir, I'm Is sorry, but my voice I clear now? guess you have to wear earphone or something because right now it's cracking a lot. I am on your phone. Hopefully, let me just see if it can be done better. Is it better now? Is it any Yes, better sir. now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Okay, wonderful. So, here's a question for you. What do you think is the most important determinant for success? सक्सेसफुल होने के लिए लाइफ में क्या लगता है आपको सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है? Sacrifice. Motivation. Hard work. Believe in Sacrifice, yourself. motivation, Believe in Hard work. yourself. hard work. Determination. Hard Goal. work. Sir, our thoughts, Okay. emotions, and और self stories. Smart work. First of Money. all, to become Okay. a good person. Integrity. And Believe in Okay. yourself. Focus. Focus. Smart work. Wonderful. Creativity. Wonderful. Confidence. See, Confidence. Money. as it was seen in the corporate world, for a long time it was believed that to be successful, you have to be rational, you have to be a logical thinker, and that is why for a long period of time आप सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे या कितना होंगे इसका सोल डिटर्मिनेंट था आपका आईक्यू. It was believed that if you have higher IQ, you are inherently going to be more successful. अगर आपकी रैशनल साइड अच्छी है, अगर आपकी लॉजिकल थिंकिंग अच्छी है और अगर आप इमोशंस को हटा के काम कर सकते हैं तो आप एक बहुत बढ़िया मैनेजर बनेंगे या सीईओ बनेंगे. बट इट वाज फ्रीक्वेंटली सीन कि जो हाई परफॉर्मर्स होते थे इंडिविजुअल कैपेसिटी में, जब उनको लीडरशिप रोल में डाला गया तो दे कुड नॉट परफॉर्म वेरी वेल. तो नेसेसरी नहीं था कि अगर उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अच्छी हो तो वो लीडरशिप के रोल में भी अच्छा काम करें. नाउ जब ये प्रॉब्लम आई तो समझ में आया कि कोई और भी कंपोनेंट है, कोई और भी चीज है जो सक्सेस से ज्यादा हैप्पीनेस को इंपैक्ट करती है और एक फुलफिलमेंट का जो सेंस है कि आपने कुछ ट्रूली अचीव किया है. बिकॉज ये जो हॉलो सक्सेस थी ये जरूरी नहीं था कि हैप्पीनेस में ट्रांसलेट हो रही हो. तो समझ में आया समथिंग इज मिसिंग फ्रॉम दिस मिक्स. केवल आईक्यू आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपकी हैप्पीनेस इंक्रीज नहीं कर रही है. दिस क्विकली बिकेम एन एक्सेप्टेबल नोशन एंड दैट इज वाई एक बार फिर से देखो जो हमारे प्रेजेंटेशन का टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इट्स रेलेवेंस इन द वर्चुअल वर्ल्ड. इसी रियलाइजेशन की वजह से ये जो एक नई फील्ड आई इमोशनल इंटेलिजेंस की, इसके ऊपर डायलॉग शुरू हुए, इसके ऊपर वर्क शुरू हुआ और आज हम भी इसी बारे में बात करने वाले. नाउ आप अगर इसको ब्रेक करना चाहो टॉपिक को तो आपको इसमें क्या क्या लॉजिकल पीसेस दिख रहे हैं, क्या क्या इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स दिख रहे हैं. कैन यू आइडेंटिफाई सम इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस टॉपिक? कुछ लग रहा है यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स होंगे या कुछ स्टैंड अलोन मॉड्यूल्स टाइप के होंगे यहाँ पे? yes, कुछ sir. लग रहा है Sir, ऐसा? एनीबडी? या प्लीज. yes, sir, emotional intelligence and Okay. emotional means connecting to the emotion of the person and how to handle it in the virtual world so that Okay. we don't harm anyone. No one can harm us emotionally. Although I hear you completely, but let's see. एक काम करते हैं. Let us trust our intuitions for a bit and let us see if we can understand what these common emojis means. तो ये पहला इमोजी जो आपके सामने है इसको देखते ही आपके दिमाग में क्या फीलिंग आ रही है? Sir, happiness.
Okay, happiness. Happiness. अगला वंडरफुल, ये Sad. 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 Sadness. Sad. Sad. सैड, सैडनेस, ठीक है। इसको देख के क्या लग रहा है? Anger. Angry. Anger. Anger. Okay, wonderful. Let us have a look at another one. What do you think this guy is all about? Excited. Personal Happy. feelings. Laughing. Interesting. Now, Excited. आप लोगों को इंट्यूटिवली पता है कि ये इमोशंस क्या हैं। ट्राई अंडरस्टैंड थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में इमोशंस क्या होते हैं। अगर मैं इस टॉपिक का पहला पार्ट लूं तो मैं पहला पार्ट लूंगा इमोशंस, बिकॉज बिना इमोशंस को समझे हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात नहीं कर सकते। तो क्या इमोशंस mean when you say that a person is having a certain emotion? You are not audible. से बहुत ज्यादा फीडबैक आ रहा है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। जिसका भी माइक अभी ऑन है, बहुत फीडबैक आ रहा है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। माय क्वेश्चन इज व्हाट आर इमोशंस? So the one who monitors someone's emotions, like one has to, so it kind of tells about the one's behavior. Okay, what else? The emotions are the feelings of a person that he or she is going through at a specific point of time. Okay, ठीक है। और any other ideas? Any other ideas? Okay, wonderful idea. Hello. Basically, हाँ, yes please. I'm not able to hear you. You're not audible. So my simple summarization is emotion. When we express our emotions, that is reaction. Basically, in fact, your emotions are reactions. आप जो भी फील कर रहे हो इमोशन, वो एक्चुअली एक रिएक्शन है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ये रिएक्शन कैसा हो सकता है? या तो ये आपके इंटरनल स्टिमुलाई से आ सकता है। इंटरनल स्टिमुलाई मतलब आपके दिमाग में कोई थॉट आया, लेट अस से यू हैव एन एग्जाम टुमारो। नाउ जैसे ही आपको उस एग्जाम के बारे में याद आया, अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हैं तो आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, आप रिलैक्स फील कर रहे हैं। लेकिन अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो आप एंजाइटी फील कर रहे हैं, आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं, या इवन आप फियर फील कर रहे हैं। तो एक तो जो इंटरनल स्टिमुलाई होता है वो होता है थॉट। दूसरा इंटरनल स्टिमुलाई हो सकता है कोई मेमोरी। आपको सडनली कोई ऐसी चीज याद आई आपके पास्ट से जो कि बहुत प्लेजरेबल थी। आपके बर्थडे का सेलिब्रेशन फॉर एग्जाम्पल, यू फील हैप्पी। या आपको कभी कोई चोट लगी थी, कोई एक्सीडेंट या कोई इंजरी हुई थी, आपको सडनली वो याद आया, यू आर फीलिंग सैड और मे बी इवन स्केयर्ड। तो एक तो जो आपके इमोशंस का सोर्स है वो है इंटरनल स्टिमुलाई, विच इज बेसिकली योर थॉट्स एंड मेमोरीज, बट इट कैन ऑल्सो कम फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। कभी ऐसा हुआ है कि आपके साथ आपने किसी को देखा हो और सडनली आप हैप्पी हो जाते हैं, या किसी को देख के यू गेट स्केयर्ड, या किसी जगह जाते ही आप खुश हो जाते हैं, या यू फील सैड, या कोई इवेंट ऐसा होता है which lifts up your spirit, makes you excited, या pulls you down. Have you experienced any of these things? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Anybody else? Okay. So the second source of your emotions can be your environment, the external stimuli. कोई event, कोई place, कोई person, कोई object, ये भी आपके emotions को trigger कर सकता है। So basically, what you call emotions is your reaction either towards internal stimuli, your thoughts, your memories, or it is in reaction. It's a reaction to an
external stimuli like a person, place, event, object, whatever it may be. तो इन्हें हम ट्रिगर्स या स्ट्रेसर्स भी कह सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा सा आगे चल के हम इनकी बात करेंगे. नाउ आपका जो रिस्पॉन्स है, रिएक्शन है, वो किन चीजों पे डिपेंड करेगा, जरा ये भी समझ लें. सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी कंडीशनिंग. चाहे वो आपकी फैमिली हो, आपके पीयर्स हो, आपके टीचर्स हो, आपका सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो, आपकी कोर वैल्यूज हो, बिलीफ सिस्टम हो, कुछ भी हो, ये सब कुछ आता है आपकी कंडीशनिंग में. कंडीशनिंग से परसेप्शन बनता है, और टुगेदर दे फ्रेम योर रिस्पॉन्स. नाउ एक एग्जांपल दूंगा, आपको बात समझ में आ जाएगी. जस्ट एज अ क्विक चेक, कितने लोग क्लास में ऐसे हैं जो वेजिटेरियंस हैं? हाउ मेनी वेजिटेरियंस डू वी हैव इन द क्लास? जस्ट अ शो ऑफ हैंड्स. ओके, 3 4 5 6. ओके, ओके, रिलेटिवली काफी कम वेजिटेरियंस हैं. ओके, वेजिटेरियंस, माय क्वेश्चन टू यू इज, व्हाट इज योर इमोशन टुवर्ड्स अ नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम? जितने भी वेजिटेरियंस हैं उनसे मेरा क्वेश्चन है, आपका इमोशनल रिस्पॉन्स क्या है, या आपके कैसे इमोशंस अटैच्ड हैं नॉन वेजिटेरियन फूड के साथ? Sir, positive. सर No problem. पॉजिटिव सर. Actually. सर लोग कहते हैं कि प्रोटीन वगैरह इतना मिलता है, पर सर वेजिटेरियन फूड इतना ज़्यादा है जिससे हमें प्रोटीन विटामिन सारे मिल सकते हैं, तो ये सिर्फ टेस्ट के लिए लोग खाते हैं और कोई रीज़न नहीं हो सकता इसका. ओके, ठीक है, आई विल टेक दैट पॉइंट. और वेजिटेरियंस, क्या आपके इमोशंस हैं नॉन वेजिटेरियन फूड को लेके? Sir, if they are eating, it's not an issue. It's their choice. But So what no about problem. your personal choice? So the problem is that if they are having a meal that's non-vegetarian with us, like we have a vegetarian meal and they have a non-vegetarian meal, then it creates a problem because we are not very much used to it. However, we are Okay. not very negative towards the person eating a non-veg meal. However, that Okay. non-veg meal creates us uncomfortable. Okay, non-veg meal. ठीक है, that was my question. Non-veg meal makes you uncomfortable. Fair enough. Now, non-vegetarians in the class, what is your emotional disposition towards a non-vegetarian dish? Sir, how can they eat that grass? Okay, pretty strong reaction. Okay, how can they eat the grass? Okay, any other emotional responses? Sir, They I don't like have food. many options for eating. Sir, if this is gonna They go don't into have like many debate, options. then I must say vegetarians will win. No doubt. Okay, so this is not a question of a debate. This is not a matter of debate. This is precisely what I was trying to prove. See, आप स्पेशली जिन्होंने नॉन वेजिटेरियन नहीं खाया है, फूड नहीं खाया है, उनका जो परसेप्शन है या उनके जो भी इमोशंस हैं, Sir, you are वो not audible. कंडीशनिंग से बने हैं. वो कंडीशनिंग से बने हैं. द वे you have been told about a certain situation that has conditioned you to react towards a certain event or a certain object in a certain manner. तो ये बात है कंडीशंस एंड परसेप्शंस की. आई होप आपको अब समझ में आया होगा कि इन सब से भी हमारे इमोशंस कैसे शेप होते हैं. Yes. एंड उसके बाद जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जिन चीजों के लिए हमारे पास पहले से फैक्ट्स या डेटा नहीं होता, वो गैप्स हम अपने एक्सपीरियंस से भरते हैं. हम किसी जगह पे गए, वहां पे जाके हमें सक्सेस मिली किसी पर्टिकुलर इवेंट में, वी वुड लाइक दैट प्लेस. किसी पर्सन के साथ हमने काम किया, हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, हमारे इमोशंस उसके तरफ पॉजिटिव हो जाएंगे. Whereas if we have negative experiences, our emotions tend to become negative. So as you grow old, not only do you use your conditioning and your perceptions, but you also use your experiences to shape your emotions. Okay, so this is how your reaction or your emotions get formed or take a shape. Now, हमने इमोशन समझ लिया,
तो चलिए अब इसकी इंटेलिजेंस या इमोशनल इंटेलिजेंस की भी बात करते हैं. नाउ दिस इज द ओनली टाइम दैट आई एम गोइंग टू शो यू अ स्लाइड लाइक दैट जिसपे इतना कुछ लिखा है. ये इमोशनल इंटेलिजेंस की एक वेल एक्सेप्टेड डेफिनेशन है. एक बार इसको देख लो, याद रहे ना रहे अपने काम का उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट जरा समझें यहां पे हम मेन किन चीजों की बात कर रहे हैं. तो मैं कह रहा हूं इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू मॉनिटर one's own and other person's emotions, to discriminate between different emotions and label them appropriately, and to use emotional information to guide thinking and behavior. Okay. Sir? Yes. Sir, I'm sorry, but I can't see your slide. Is anybody else facing the problem too? No, sir. No, So, sir. I No, will sir. start No, sir. your No, browser. sir. No, sir. If it still does not work, maybe you can log out and log in again. Okay, just try that. No, If sir. the problem persists, do let me know. Oh, okay. Okay, so ये एक well accepted definition है emotional intelligence की. Now, can you identify the key words here? क्या क्या लगता है, क्या क्या इसका मतलब मेन जो एस्पेक्ट्स हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के वो क्या क्या बने? Sir, can I please answer? Yeah, please go ahead. The ability to monitor our own and other people's emotions. That we refer to ourselves, we see our own emotional state at a particular time and others as well, and we label them differently, and then we respond to them appropriately to fit our own emotions and others' emotions as well, so that no one feels, left out and bad or something like that. Fair enough. Anybody else? Anybody else who would like to contribute? Okay, let us see. सबसे पहली बात तो समझ में ये आई, इमोशनल इंटेलिजेंस इट इज नॉट जस्ट अबाउट अस. इमोशनल इंटेलिजेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे अलावा हमारा जो एनवायरनमेंट है, जितने भी लोगों से हम इंटरेक्ट करते हैं या जितने भी लोगों को हमारे एक्शंस इंपैक्ट करते हैं, इट इज अबाउट एवरी सिंगल वन ऑफ देम. So, this is the scope of emotional intelligence. Please remember, it's not just about us. Now, let us see, सबसे पहला एस्पेक्ट कौन सा इंपॉर्टेंट है यहां पे? सबसे पहला एस्पेक्ट है मॉनिटरिंग ऑफ इमोशंस. देखो, आप कुछ भी करना शुरू करो उससे पहले ये तो पता हो कि इमोशंस आ गए हैं. नाउ कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनके साथ ऐसा हुआ है या जिन्होंने लोगों को ऐसे देखा है कि बात करते करते किसी टॉपिक पे सडनली आपकी आवाज का जो पिच है वो चेंज हो गया, या आपका एक्साइटमेंट लेवल एकदम बढ़ गया, एंड कोई आपको टोक रहा है कि तुम अग्रेसिव क्यों हो रहे हो, या तुम ओवर एक्साइटेड क्यों हो रहे हो, या आपने किसी और को कहा व्हाई आर यू बीइंग अग्रेसिव, व्हाई आर यू बीइंग आर्गुमेंटेटिव. ऐसा हुआ है क्या कभी? Yes. A lot. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Agreed. सो इमोशंस के साथ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हम इमोशनल हो गए हैं. सो इमोशनल इंटेलिजेंस में हम जो पहली चीज देख रहे हैं, मॉनिटरिंग आवरसेल्व्स एंड अदर्स टू हैव द अवेयरनेस कि कब हमारी इमोशनल स्टेट जो है वो हाइटेंड हो गई है. एंड प्लीज अंडरस्टैंड, ये पॉजिटिव साइड पे भी जा सकती है, ये नेगेटिव साइड पे भी जा सकती है. आप पॉजिटिवली भी हाइटेंड हो सकते हैं, एक्साइटेड हो सकते हैं, आप नेगेटिवली भी हाइटेंड हो सकते हैं, आप एंग्री हो सकते हैं, अग्रेसिव हो सकते हैं. तो जो पहली चीज आपको समझनी है इमोशनल इंटेलिजेंस में, इवन बिफोर यू कैन स्टार्ट डीलिंग विद इमोशंस, यू नीड टू बी अवेयर कि कौन से इमोशंस आ रहे हैं, या सिंपली पुट क्या हम इमोशनल हैं, या क्या जिससे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं वो पर्सन इमोशनल स्टेट में आ रहा है. नाउ आपने अवेयरनेस जनरेट कर ली, नाउ यू नो दैट यू आर इन एन इमोशनल स्टेट. बट व्हाट स्टेट प्रिसाइजली? आप किस इमोशनल स्टेट में हो? आपको अपनी इमोशनल स्टेट को
डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए, दूसरों की भी इमोशनल स्टेट को डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए और उसको लेबल करना सीखना होगा हमें। नाउ आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल जिससे आपको बात क्लियर होगी। कई बार ऐसा हुआ है क्या कि किसी ने आपको डिसअपॉइंट किया या हर्ट किया और आप वो एक्सप्रेस करने की बजाय एक्चुअली गुस्सा हो गए, यू स्टार्टेड लैशिंग आउट, या कोई और इशू था और आपने उसको डील किसी और तरह से किया? हुआ है क्या कभी आपके साथ ऐसा? हैव यू फेल्ट दिस? Yes, sir, because we are not Yes, at your sir. Yes, sir. actual current state. Yes, sir. ओके, सो नाउ अगला जो इंपॉर्टेंट काम है वो है आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सेप्टेंस। देखिए, आइडेंटिफिकेशन और एक्सेप्टेंस दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पहली बात तो आपको यह समझना होगा आप एक्चुअली गुस्सा हैं या आप डिसअपॉइंटेड हैं या आप स्केयर्ड हैं या जो भी आपके मन में चल रहा है वो एग्जैक्टली सिचुएशन है क्या। और एक्सेप्टेंस कि हाँ मैं इस स्टेट में हूं। कई बार ऐसा भी होता है, हमसे कोई कहता है तुम्हें गुस्सा बहुत आता है, एंड वी आर लाइक क्या बात कर रहे हो, हमें तो गुस्सा आता ही नहीं है। या कोई कहता है तुम बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हो, एंड वी आर लाइक नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। द थिंग इज, अगर आप लोगों ने अवेंजर्स की मूवीज देखी हो या हल्क की मूवीज देखी हो, बाय द वे कितने लोगों ने ये मार्वल की सीरीज देखते हैं? कितने लोगों को पता है ये हल्क या ब्रूस बैनर है? ओके, Yes, sir. नाउ sir. अगर Yes, sir. आपने मार्वल की Yes, शुरू की मूवीज देखी हो, हल्क की शुरू की मूवीज देखी हो या एवेंजर जो वाला जो सीरीज है, तो आपने देखा होगा देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हल्क एंड बैनर, है ना? वो एक दूसरे के अगेंस्ट जाते रहते थे, एंड दैट इज व्हाई इट यूज्ड टू क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। बट अगर आपने लास्ट की मूवीज में देखी हो, लास्ट की तरफ आते आते एंड गेम वगैरह, तो दे एक्सेप्टेड ईच अदर एंड दे बिकेम एन इफेक्टिव टीम। इससे बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको इमोशनल इंटेलिजेंस का दे नहीं सकता। जब तक आप अपना ट्रू नेचर, अपने ट्रू इमोशंस एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक आप अपने आप के साथ लड़ रहे हो। बट द मोमेंट यू आइडेंटिफाई एंड एक्सेप्ट, अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, कोई बात नहीं है, वी विल डील विद इट। अगर मैं सैड हूं, आई एम सैड, इट्स ओके, आई डील विद इट। अगर मैं एक्साइटेड हूं, दैट्स फाइन टू, आई विल लर्न टू हैंडल इट। The moment you have the acceptance that I am in so and so emotional state, dealing it becomes very easy. So the next point is, as I said, identification. Now बहुत commonly आपने देखा होगा, कई बार आप surprised हो, लेकिन you start feeling a sense of worry. आप बोर्ड हो और उसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हो, या आप सिंपली सैड या स्केर्ड हो, आप एंग्री फील करने लग जाते हो। ये जो मिस लेबलिंग है, यू वुड नॉट बिलीव, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इट इज वेरी इजी टू मिस लेबल एंड मिस इंटरप्रेट इमोशंस। एंड डू यू हैव एनी आइडिया कितने टाइप के इमोशंस हो सकते हैं? वेरियस जो थॉट स्कूल्स हैं, अलग अलग जो वर्क कर रहे हैं रिसर्चर्स, कोई 25, कोई 26, कोई 27, दे हैव लगभग 3.5 डजन इमोशंस। और अगर आपको उनको एक सिंपल फॉर्मेट में, ग्राफिकल फॉर्मेट में देखना है, तो ये मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। जो इनर सर्कल है सबसे ज्यादा, वो सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस का है, और जैसे जैसे आप बाहर आते जाते हो वो डिसिपेट होते जाते हैं या वीक होते जाते हैं। कई बार आप देखो कुछ इमोशंस एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल भी हो रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखो, सबसे अंदर है रेज, इट इज वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, इट इज वेरी इंटेंस। उसके बाहर है थोड़ा एंगर, और उसके बाहर उसका वीक फॉर्म है अनोयंस। उधर आप देखिए एडमिरेशन, trust, acceptance. Now when acceptance and serenity come together, love is formed. When acceptance and apprehension comes together, submission is formed. So there are so many ways in which emotions interact, and sooner you start nailing down your true emotion, जितने जल्दी आप पिन पॉइंट करना सीख लोगे कि एग्जैक्टली मैं क्या फील कर रहा हूं,
उतने ही जल्दी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो जाएंगी, बिकॉज फिर आप उन्हें एक्सेप्ट भी कर पाओगे। ओके, नाउ हमने पता कर लिया कि हम इमोशनल स्टेट में हैं, हमने ये भी पता कर लिया हम किस किस इमोशनल स्टेट में हैं या सामने वाला किस इमोशनल स्टेट में है। उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस क्या मदद करती है हमें, ये देखिए। उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस हमें हेल्प करती है उस सिचुएशन को, उस पर्सन को, उस इवेंट को प्रॉपरली हैंडल करने में। जितनी जल्दी उसके बाद आप क्या कर पाओगे, जितनी जल्दी आप ये सब फॉर्मुलेट कर लोगे, उतनी जल्दी आप प्रॉपर रिस्पॉन्स फॉर्मुलेट कर पाओगे, एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। एंड इसके साथ में एक और भी बात है, नॉट जस्ट रिस्पॉन्स। कई बार आपको समझ में आएगा दैट द बेस्ट रिस्पॉन्स इज टू गिव नो रिस्पॉन्स। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट कि रिस्पॉन्स ना देना भी अपने आप में एक रिस्पॉन्स है? एनीबडी प्लीज स्पीक अप। सो कुछ बोलने से भी सिचुएशन सॉल्व हो जाती है, सिंपली कुछ रिएक्शन ना देने से भी काम चल जाता है। सो यू नीड टू फिगर आउट कि आपको इस सिचुएशन को टोनी स्टार्क के फॉर्म में हैंडल करना है या थॉर के फॉर्म में हैंडल करना है। अगर आप सिचुएशन को प्रॉपरली समझ पाए हैं तो आपका रिस्पॉन्स जो है वो भी अप्रोप्रिएट होगा, वो भी बिल्कुल मेजर्ड होगा। यू विल नॉट हैव over response, you will not have under response, you will have just So I think it depends upon the situation, that what is the situation, according to that सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ही हम, अगर देखिए अगर हमें एक्सट्रीम रिएक्शन देना है और अगर सिचुएशन डिमांड करती है तो हम एक्सट्रीम रिएक्शन भी देंगे, बट उस केस में वो जस्टिफाइड होगा। दैट इज द पॉइंट। So even if we need to give extreme reaction, that is fine, but it should be appropriate in that situation. ठीक है? तो इसीलिए मैंने कहा हो सकता है कई बार आपको थॉर की तरह से भी एक्ट करना पड़े, डज नॉट मैटर। अगर सिचुएशन डिमांड करती है आप करिए, बट उस सिचुएशन के हिसाब से सही अगर है तभी करिए। ओके, सो आई एम नॉट आस्किंग यू टू नॉट रिस्पॉन्ड। कभी कभी नॉट रिस्पॉन्ड करना ठीक होगा, कभी नहीं होगा। आपको कई बार अफर्मेटिव एक्शन लेना पड़ेगा एंड वी शैल टेक दैट। जज करेंगे कि ये सिचुएशन ये मतलब रिस्पॉन्ड करने के लिए ठीक है और ये नहीं। बस आप देखो वेरियस फैक्टर्स हैं। अगर आपको लगता है सामने वाला बहुत ज्यादा इमोशनल स्टेट में है और वो जो कह रहा है he or she does not really mean it, they're just venting out, so maybe you will let it go. Okay, but if you believe that the other person is deliberately creating a problem, maybe you will give them another chance, you will fire them, or maybe you will take some action against them. It will depend upon your reading of the situation. आपकी जो भी रीडिंग रहती है इस सिचुएशन में करने को, आप उस हिसाब से करोगे। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखोगे, सिचुएशन को वर्सन करने से रोकोगे अपने इमोशन से। वरना बड़ा आसान है, अगर आपके ऊपर कोई चीख रहा है उसके ऊपर वापस चीखना बहुत आसान है, बट अगर आप समझ पाओगे कि अगला बंदा जो अगर गुस्सा एंगर है उसका कहां से आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन से आ रहा है, सैडनेस से आ रहा है, तो आप शायद अपने टेम्पर को कंट्रोल में रख पाओगे। ओके, समझ में आया? क्वेश्चन, हाँ प्लीज गो अहेड। सर आप कहते हो कि चुप रहना भी एक रिस्पॉन्स होता है, बट सर कभी कभार ऐसा भी होता है कि मतलब अगर पर्सन आपको समझता है कि आप डर गए हो, हमेशा आपको चुप रहना है। यहां पे बात अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स की है। अगर आपको लगता है कि आपके चुप रहने से सिचुएशन वर्स होगी तो आप वहां पर असर्टिव एक्शन लेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है इस सिचुएशन में थोड़ी सी शांति इस सिचुएशन को डिफ्यूज कर सकती है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, दो लोग आर्ग्यूमेंट में पड़ते हैं, छोटा सा मैटर होता है
and once they start arguing they come up with issues जो बहुत पहले होके खत्म हो गए हैं, and now even they are being dragged into the argument. अगर इस केस में एक जना इमोशनल इंटेलिजेंस दिखा के थोड़ी देर के लिए चुप रहेगा या ये समझ लेगा कि अगले के इमोशंस कहां से आ रहे हैं और जो कोर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने पे ध्यान देगा, मे बी आर्ग्यूमेंट्स आउट ऑफ हैंड नहीं होंगे, मे बी सिचुएशंस वर्सन नहीं होंगी. ओके, सो अभी हम और भी आगे देखेंगे. नाउ हमने ये सब समझ लिया, अब कुछ बातें तो हमने कर ली हैं, अब हम देखते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस का इंपैक्ट आपको कहां कहां दिखेगा. नाउ सबसे पहले अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे, यू वुड क्रिएट सम गैप बिटवीन द इवेंट या जो स्ट्रेसर है एंड रिएक्शन. कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने गुस्से में कोई काम किया है या ओवर एक्साइटमेंट में कोई कमिटमेंट किया है और बाद में जो गुस्से में काम किया हुआ है वो गड़बड़ हो गया या जो एक्साइटमेंट में ओवर कमिटमेंट किया था वो पूरा नहीं कर पाए? वुड एनीबडी लाइक टू शेयर? कोई बताना चाहेगा? एनीबडी गुस्से में कोई काम गड़बड़ कर दिया हो या ओवर एक्साइटमेंट सर काम मतलब डिसीजन लिया है कोई, मतलब ऐसी गलत डिसीजन हो या एक्शन लिया हो? एनीबडी? ओके, चिराग प्लीज स्पीक अप. वुड यू लाइक टू शेयर विद अस? या आप कई बार बहुत एक्साइटेड होते हो, आप बड़े बड़े प्लान बना लेते हो, कमिटमेंट दे देते हो, बाद में वी आर नॉट एबल टू लिव अप टू दोस कमिटमेंट्स. ये भी सेम इशू का ही मैनिफेस्टेशन है. इवेंट हुआ, आपने इमीडिएटली रिएक्ट कर दिया, यू मेड ग्रैंड प्रोमिसेस, और आपने या फिर क्या किया, गुस्से में आके इमीडिएटली कोई डिसीजन ले लिया कि कल से तो मैं बात ही नहीं करूंगा, कल से तो मैं काम ही नहीं करूंगी, और बाद में डैमेजेस हुए. अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस को प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, आप जो भी इवेंट हुआ है एक बार उसको रुक के थोड़ा सा उससे डिस्टेंस बना के फिर अपना डिसीजन लेंगे और आप देखेंगे आपके डिसीजन की क्वालिटी पहले से बहुत इंप्रूव हो जाएगी. तो एक तो ये फायदा है इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पता होने का. वी कैन पुट सम गैप बिटवीन द इवेंट्स और द ट्रिगर्स एंड आवर रिएक्शंस so that those reactions are our own reactions and not just a reaction to the situation. Further, lesser misunderstandings. आपने कई बार देखा होगा, आप अपने इमोशंस के बारे में अगर अवेयर नहीं है, आपने आवाज अपनी तेज कर दी, तो आपके फ्रेंड्स हों, फैमिली हों, पेरेंट्स हों या इवन टीचर्स, उनको लगा कि आप डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हैं या आप अग्रेसिव हो रहे हैं. हुए कभी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स? हुई है कभी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स? यस सर. ओके, तो ये कब हो जाएंगी? यस सर. यही नहीं, कई बार आप भी ऑफेंड हुए होंगे, किसी ने आपसे गलत तरीके से बात करी, आप ऑफेंड हो गए, लेकिन अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस के प्रैक्टिशनर हैं, आप समझ रहे हो आपके फ्रेंड के मार्क्स कम आए हैं मान लीजिए किसी एग्जाम में, और आपने उससे पूछा कि लेट्स गो टू द कैंटीन, एंड फ्रेंड ने इमीडिएटली कह दिया मुझे नहीं जाना, एंड यू आर लाइक यार ये क्या तरीका है बात करने का. बट अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस रखोगे, आपको समझ में आएगा योर फ्रेंड इज नॉट मैड एट यू, मे बी योर फ्रेंड इज जस्ट अपसेट विद हिज और हर रिजल्ट, एंड यू विल बी लाइक ओके इट्स, so you will have lesser misunderstandings. Last but not the least, एक बहुत important impact है, you will have higher motivation within yourself and with the people who you interact with. अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, आप लोगों से सही शब्दों में बात करना जानते हैं, आप उनसे ज्यादा बढ़िया टीम वर्क ले सकते हैं, आपकी जो क्वालिटी है आउटपुट की वो बढ़ जाएगी. और इसी तरह से अगर आप खुद के ऊपर इमोशनल इंटेलिजेंस प्रैक्टिस करते हैं, कई बार जो छोटी छोटी चीजें आपको रोक देती हैं या डिस्करेज कर देती हैं, आप उनको
इतना अटेंशन देना बंद कर देंगे, उनकी सच्चाई जो है उसे देखना शुरू कर देंगे, एंड आपका खुद का मोटिवेशन बढ़ जाएगा। एक और एग्जांपल लेता हूं, कई बार ऐसा हुआ होगा, आपका किसी से कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है या कोई बात हुई है और पता चला वो तो जो दूसरा पर्सन था वो उस बात को भूल भी गया, लेकिन आपके मन में वो बात अभी भी चुभ रही है, एंड इट इज पुलिंग यू डाउन। अगेन, इफ दिस हैज हैपेंड टू यू, लेट मी नो। किसी से साथ कोई आर्ग्यूमेंट हुआ, कोई बात हुई, वो पर्सन तो भूल गया, दे आर लिविंग देयर लाइफ with utmost interest, you feel that a brick has fallen over you. हुआ है ऐसा कभी? हुआ है किसी के साथ? Because we don't have much of confidence in us and we kind of trust someone else more than us. Yes, So, sir. अगर आप ये बात भी समझ जाओगे कि हर बात को जितनी इंपॉर्टेंस देनी है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना जरूरी नहीं है, हर चीज के ऊपर रिएक्शन देना जरूरी नहीं है, और हर जो बात जैसी सुनने में लगती है जरूरी नहीं है वैसी ही हो। हर गुस्सा गुस्सा नहीं होता, कोई गुस्सा सैडनेस भी होती है, कोई गुस्सा डिसअपॉइंटमेंट भी होता है। द मोमेंट यू रियलाइज इट, यू विल हैव सम ईज इन लेटिंग थिंग्स गो। आपके मन से आप बहुत सारा वेट जो है वो अनलोड कर सकते हो। ओके, अगेन फिर से एक बार अपना टॉपिक देखते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इट्स रेलेवेंस इन द वर्चुअल वर्ल्ड। तो ठीक है, इमोशन समझ लिए, इमोशनल इंटेलिजेंस समझ ली। नाउ व्हाई डू आई ब्रिंग इन द लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक? इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करके भी मैं रुक सकता था, लेकिन यहां पे मेरे को इसको एक डिफरेंट लाइट में रखना है। We are facing a brand new reality, we are facing a brand new situation। ये वर्चुअल वर्ल्ड में आज ये क्लास चल रही है। नाउ क्या बदला पिछले 6 महीने में? What has changed in the last 6-7 months? What has changed? It's kind of Anybody? everything, way of living, their lifestyle. Okay, pandemic has brought in many changes. So the lifestyle, the way of teaching, the way of learning, we can't freely go out on the streets and roam like we used to. So a lot has changed. The medium of So we interaction. kind of aparted from everyone near us. We kind of be so apart. वंडरफुल। मजे की बात यह कि आज अगर आप देखो पिछले 3-4 महीनों में इतने ज्यादा एप्स आ गए हैं, इतने ज्यादा तरीके आ गए हैं कनेक्ट होने के, लेकिन वी आर मोर डिस्कनेक्टेड देन एवर। आज मैं आपका ये लेक्चर ले रहा हूं, आई एम नॉट एबल टू सी एनी वन ऑफ यू। आप लोग भी या तो मेरी स्लाइड देख पा रहे हैं या मेरा फेस देख पा रहे हैं। अभी भी मैं जब बोल रहा हूं, आई डोंट थिंक यू आर एबल टू सी मी राइट नाउ। So how do we connect in such a disconnected world, and how does emotional intelligence play a role here? ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हमारी सक्सेस को, हमारी लर्निंग को बहुत मेजरली इंपैक्ट करेगा। नाउ अगर मैं क्लास में होता, आप लोग मेरे सामने बैठे होते, मैं आप लोगों को एक नजर में देख के समझ जाता किस किस को मेरी बात समझ में आ रही है, किसको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, किसको इंटरेस्ट है, कौन इंट्रोवर्ट है, कौन एक्सट्रोवर्ट है। ये सब कुछ मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज से समझ जाता। आप भी मेरे बारे में बहुत सारी चीजें मेरी बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते। बट आज के लेक्चर में, आज के सेशन में, डू वी हैव एनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? Do we have any eye contact? There is no way to know कि आप लोग इस समय क्या फील कर रहे हो। This is a huge problem। आज मेरा आपका कनेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट हो गया है। एंड एक बात सोचो, एक ऐसी सिंपल चीज, मतलब एक टीचर स्टूडेंट के बीच में हमने जिस चीज को इतना फॉर ग्रांटेड ले रखा था, क्या? विजिबिलिटी, कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब आप मेरे से पढ़ोगे, हम एक दूसरे को देख पाएंगे। आज इतनी सिंपल सी चीज भी हम ग्रांटेड नहीं ले सकते। आई डोंट इवन नो मैं कब आप लोगों से मिलूंगा, व्हेन विल आई बी एबल टू सी ऑल ऑफ यू। इन सच अ सिचुएशन, अपने जो कनेक्शंस के तरीके हैं, द वे वी यूज्ड टू गेट टू नो पीपल, वो सब कुछ बदल गया है।
कम्युनिकेशन के इतने जबरदस्त बैरियर क्रिएट हो गए हैं। अभी आप लोग में से कोई जना बोल भी रहा था, मेरे को उसकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, बीच में आपको मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। मतलब पहले बात तो बचा ही केवल एक तरीका, माय वॉइस एंड योर वॉइस, और उसमें भी टेक्नोलॉजी इतनी चीजें, इतने बैरियर्स क्रिएट कर रही है। मे बी जो आप मेरे को सुन रहे हो वो मेरी एक्चुअल आवाज हो भी ना, इट इज डिपेंडिंग अपॉन माय माइक, इट इज डिपेंडिंग अपॉन योर स्पीकर, इट डिपेंड्स अपॉन माय इंटरनेट कनेक्शन, योर इंटरनेट कनेक्शन। देयर आर सो मेनी वेरिएबल्स। इमोशंस तो हमारे आपके इंटरेक्शन में से लगभग गायब ही हो गए। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कनेक्ट विथ पीपल एट एन इमोशनल स्टेट इन सच अ सिचुएशन। एंड फिर क्या है? It creates greater chances of misunderstanding. मैंने कुछ बोला, आधी बात आपको समझ में आई, आधी नहीं समझ में आई। आपने कुछ पूछा, मुझे आपकी आधी बात समझ में आई, आधी नहीं आई। पता चला ना मेरा मैसेज आप तक पहुंचा, ना आपका मैसेज मेरे तक पहुंचा। We are living in a state of misunderstanding. ये भी छोड़ो, तुम्हारा ये प्रोफेशनल कोर्स है, ओके। अगर आप नॉर्मल क्लासरूम में होते, आपकी जो सोशल स्किल्स हैं वो डेवलप हो रही होती, आप प्रेजेंटेशंस दे रहे होते, आप स्पीचेस दे रहे होते, आप ग्रुप वर्क कर रहे होते। अभी क्या है? पहले आप कैसे खड़े हो रहे हैं, आप अपने हैंड्स कैसे रख रहे हैं, आप किस तरह से कपड़े पहन रहे हैं, ये सब कुछ डिपेंड करता, ये सब कुछ आप सीखते, और ये सब कुछ आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता। But now, where is the community building? आप लोग अगर अभी ग्रुप में प्रोजेक्ट्स बनाओगे भी तो क्या होगा? एक जने का ये काम है, एक जने का वो काम है, तुम ये कर देना, एक जना उस काम को एक साथ इकट्ठा कर देगा, एंड दिस इज हाउ यू कंप्लीट योर असाइनमेंट्स या प्रेजेंटेशंस। आप एक दूसरे के साथ बैठ के काम करने की जो टेक्निक है, जो स्किल्स हैं, वो अभी नहीं सीख पा रहे। इसीलिए किस तरह से ओवर द इंटरनेट विदाउट बीइंग इन फिजिकल प्रॉक्सिमिटी विद समवन कैसे काम करना है, कैसे इमोशनल कनेक्ट बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। एक और चीज आपने देखी होगी, कितनों को याद है जब इंडिया ने 50-50 ओवर्स का जो फॉर्मेट होता है वनडे का, उसमें वर्ल्ड कप जीता था? कितने लोगों को याद है? एनीबडी? बोलो बोलो, किसी को याद है? यस सर। ओके, एंड डू यू रिमेंबर सचिन को कंधे पे बैठा के पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाया गया था, और हमारा जो यस सर। आप देखो क्या होता है ना, इमोशंस मिरर होते हैं। जब आप एक दूसरे के साथ में होते हो ना, अगर एक जना एक्साइटेड है, इट इज इन्फेक्शियस, पूरी टीम, पूरा ग्रुप, पूरी क्लास एक्साइटेड हो जाती है। वो जो वर्ल्ड कप जीते थे, वो पूरी टीम जो थी, दैट वाज एस्टैटिक, मतलब दे वर ऑल चार्ज्ड अप बिकॉज दे वर इन फिजिकल प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर। नाउ द प्रॉब्लम इज you need to find ways to share group emotions in this virtual world. और जो अब तक हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल था, वो यहां पे सफिशिएंट नहीं रहेगी। इफ यू रियली वांट टू एम्पैथाइज विद अदर्स, अगर आपको दूसरे के इमोशंस को समझना है, अब आपके लिए नए चैलेंजेस हैं, इसलिए आपकी सेंसिटिविटी भी उसी हिसाब से बढ़ जानी चाहिए। Now, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, प्लेस माइंडसेट कनेक्ट। अगर आप नॉर्मली कॉलेज में आते तो क्या होता, एक क्लासरूम है जहां पे आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हो, फिर एक कैंटीन है जहां पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहे हो, you're chilling with your friends, then you go home, you interact with your parents, your siblings, then there is your maybe bedroom जहां पे you go and you rest. Now be honest and just tell me, कितने लोग ये लेक्चर जो हैं वो अभी अपने बेडरूम में बैठ के अटेंड कर रहे हैं? How many of you are currently attending this lecture from your bedrooms? Okay. Yes, sir. Now let us Yes, sir, further me. Yes, sir. make it more interesting. कितने लोग हैं जो ये लेक्चर्स अपने पजामा या शॉर्ट्स में बैठ के अटेंड कर रहे हैं?
Yes, sir. Yes, Me. sir. Yes, sir. Okay. So you Obviously, see, Yes, sir. we have a unique Yes, problem. sir. We have a problem of disciplining ourselves. पहले क्या होता था, जब आप जैसे ही अपने बेडरूम से बाहर निकले, अपने लिविंग रूम में आए, वहां पे एक एनवायरनमेंट चेंज हुआ. जैसे ही आप अपने लिविंग रूम से निकल के कॉलेज में आते हो, वहां पे एनवायरनमेंट चेंज हुआ. कॉलेज में भी यू आर अ डिफरेंट पर्सन, you have a different set of emotions in classroom, you have a different set of emotions in the canteen. Now आपके सारे इमोशंस आपके एक ही डिवाइस के थ्रू आ रहे हैं. जब क्लास है तब भी बेडरूम में फोन पे है, आप फ्रेंड से हैंग आउट कर रहे हो तब भी वो आपके बेडरूम में फोन से है. आप उसी जगह पे, कई लोग तो ऐसे हैं, आई नो इट फॉर अ फैक्ट, कुछ लोग तो खाना भी बेडरूम में ही खा रहे होंगे. सो एक और बड़ा यूज है इमोशनल इंटेलिजेंस का. ऑल्दो यू आर लिमिटेड बाय योर मूवमेंट, you should not let your emotions get limited. आपको ये सब कुछ अभी भी फील करना है, और इसीलिए आपको इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत है, ताकि आप अपने लाइफ में डिसिप्लिन ला सको एंड मोटिवेशन ला सको. मन नहीं कर रहा आज क्लास अटेंड करने का, क्योंकि क्लास आज क्या है, बिस्तर पे लेटे लेटे ही क्लास है, बिस्तर पे लेटे लेटे ही फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्शन है. हाउ डू यू गेट द मोटिवेशन व्हेन द सीनरी डज नॉट चेंज? हाउ डू यू गेट द मोटिवेशन when the device does not change? Through emotional intelligence. That is how you do it. And last but not the least, आज सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम चैलेंज हम सबके सामने है वो है अनसर्टेनिटी. क्या हो रहा है, वी आर नॉट वेरी श्योर. कब तक ऐसा चलेगा, अगेन वी आर नॉट वेरी श्योर. तो कुछ करके फायदा क्या है? दिस इज अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन. I would not even say ये सवाल गलत है. That's a very genuine question. I don't even know when I'll get to see you. So what's the point? No. Inherently मेरे काम की वैल्यू है. ये बात समझने के लिए आप भले ही वर्चुअल लेक्चर अटेंड कर रहे हो, क्या फर्क पड़ता है अगर नहीं सुनूं, क्या फर्क पड़ता है अगर बिस्तर पे लेटे रहें. ये जो ओवरकम करने की पावर आपको देगा, इस अनसर्टेनिटी में भी जो स्ट्रॉन्ग रहने की पावर देगा, वो आपको इमोशनल इंटेलिजेंस ही देगा. सो आज इमोशनल इंटेलिजेंस की बात केवल सक्सेस के लिए नहीं रह गई है. इट इज ऑल्सो फॉर द सेक ऑफ योर सैनिटी. आप डिप्रेशन, एंजाइटी ये सब फील ना करें, आप होपलेसनेस में ना जाएं, आप मोटिवेटेड बने रहें, डिसिप्लिन बने रहें. यू नीड टू बी वेरी जेलस ऑफ others who are keeping their mind focused, and you should guard your sanity with everything that you have. And for that, the only tool that will help you is emotional intelligence. So I'm almost out of time. बस लास्ट एक चीज आपको बोल रहा हूं, 2 गोल्डन रूल्स दे रहा हूं. अगर लाइफ में हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट चाहिए, अपने गोल पे फोकस्ड रहना है, तो 2 गोल्डन रूल्स दे रहा हूं. इनको ध्यान में रखना. इमोशनल इंटेलिजेंस भी इंप्रूव हो जाएगी और आपके हैप्पीनेस का लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा. और वो 2 गोल्डन रूल्स हैं. पहला रूल है सानुकी. अगर अपने को फर्क नहीं पड़ता उससे, तो टेंशन काहे को लेनी. और दूसरा गोल्डन रूल है मिट्टी पाओ. नॉट एवरीथिंग डिजर्व्स योर रिएक्शन. अगर जरूरत नहीं है रिएक्शन की तो मत करो, और जितना जरूरत है उतना ही करो, उसके बाद चीज को खत्म कर दो. सो दिल्ली वाले तो वैसे भी इस चीज को बहुत अच्छे तरह से समझते भी हैं और शायद फॉलो भी करते हैं. These are the 2 golden rules to happiness, Sanuki or Mitti Pao. And with this, we come to the end of today's session. I wish you all the best, and I'm gonna see a lot of you in the class very soon. I'm Lakshman. Thank you, sir. Thank you. Enjoyed all. Thank you, sir, for Thank you, motivating sir. us. Thank you, sir. Maheshwari. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. अगर एक तो क्वेश्चन का मैं टाइम है मेरे पास, I'll take a question or two if there is anybody who wants to ask something. I'm here for you.
Sir, I don't want to ask, but I want to say something. Okay. I have already attended your lectures. I am from Panipat, your GK classes. That was the most fun at Batra Study Circle. Okay. Good to And have you. that has helped me a lot, sir. Thank you so much. Thank you, Muskan. Anybody else? Anybody else? Oh, so I have I might have a few ex-students too. That is good to know. Anybody Yes, else? sir. Me too. Sir, there is Okay. no Ajay. query, but can I appreciate you for one thing? Okay, I'll be more than glad if you do that. Yeah, It please. was a very lively class, sir. The exact Okay, word for the class is it was a very lively class. thank you so much. So that's Yes, good. sir. Actually, it was really. Thank you so much. Thank you. So I have already identified two ex-students here, and Sir, I'm really very enjoyed your class. huh? Okay. Class Sir, since we have started here. This was the best one. Thank you बोर so नहीं हुए सर. Yes, the best one. much. Okay. So see, this is सर मैं again कूल हूँ आपसे. Yes, sir. okay. Thank Your you so much. so your ex students know that your class are not boring, be it a GK class or not. So we know how our GK classes also go besides the Thank you very much, subject. Namita. Thank you Yes, sir. very much. Okay, so it has been a very wonderful session with you guys. You all are excellent audience, and I love the interaction. Thank you very much for this wonderful experience. We'll end the class here, and hopefully, I'll see most of you very soon. Take care, stay safe, and stay emotionally intelligent. Bye bye. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Take Bye, care. sir. Thank Thank you, you. sir. Thank you. Sir, Thank you. Thank you, sir. bye sir.